Guys, hello everyone. Welcome back. Yes, ma'am. Yes, miss. Yeah, everyone is clear with all the examples of the pneumatophores. Yes, I had one Yes. doubt. yes, Kiran. Miss, if mangrove trees are grown in an area where there is not that much marshy land or the water is not that saline, then would they still develop these roots? Yeah, of course. They will Okay. develop, but the length or but the size will be very less. And secondly, कैसे होगा? Plants will take more time to adapt also. आप प्लांट को एक अलग सा एनवायरनमेंट दे रहे हो ना, तो इट विल टेक टाइम टू अडेप्ट, बट वो ग्रो जरूर होंगे. ओके, बट देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज प्लांट्स अ लॉट. मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है सॉल्ट, वो आपको देना पड़ेगा. Okay, miss. Probably they may not produce even this nematophores as well. So if you are planning to bring them into our normal soil and grow them, तो शायद ये ना भी grow पाए. वैसे they are very much Okay. used to this condition. Every plants are used to this condition. Okay, हम भले succulent plants घर पे लाके grow करते हैं, right? Succulent plants, you must be knowing it. People are crazy about it. I myself am very crazy about growing these succulent plants like cactus and opuntia and different type of Mecklenbeckia. All these succulent plants, I'm a big fan of it. But the problem is that कि अगर आपने उनको राइट कंडीशन दिया ना तो ही वो ग्रो पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे. तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप कोई भी प्लांट्स को ग्रो करते हो, उनको आप पर्टिकुलर वो कंडीशन दो. तो पहले तो आप उनके बारे में स्टडी करो और फिर उनको ग्रो करो. इट्स लाइक दैट. सो इफ यू कम टू नो कि इसको आप नॉर्मली कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हो. बट आई थिंक सो ये नहीं ग्रो पाएंगे. ये जितना हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चाहिए इनका, वो नहीं हो पाएगा. ओके, चलो. Okay, miss. Guys, can we move on to modification of adventitious root? Kiran, clear everything? वो लिखना था ना वो Oh, I'm respiration. sorry. I'm sorry. Examples. Yes, you have to note down the examples. Avicennia, Solanaceae, Rhizophora, red mangrove. वो जहाँ पे मैंने आपको लिस्ट बनाने बोला था, वहां पे प्लीज डाल दीजिए. नहीं मिस, इसके पहले वाला. अच्छा, वो मैटर भी चाहिए क्या? हाँ मिस, आपने बोला पहले Yes, एग्जाम्पल्स miss. फिर ये. एक्चुअली सिर्फ एग्जाम्पल्स की लिस्ट डालो. वही तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, एग्जाम्पल्स. The chart which I told you to make it only of examples. मैम पीछे पॉइंट्स भी थे. हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको पॉइंट्स भी कॉपी करना है. ले लो, जल्दी से ले लो. टिया कैमरा ऑन करो. दीक्षा. Done everyone? Hiya, Vaishnavi, Hiral, Heer, Tanishka, Mohammed, Shreya, Arusha, Uzma, Zeel. मैम जब वो रूट्स Yes, miss. का पढ़ा रहे थे तो हेलो हाँ उस्मा. मैम जब रूट्स का पढ़ा रहे थे 1 डिग्री 2 डिग्री वो सब वो सब क्या था? अच्छा, ऐसा बोलते होंगे. We use this numbers, the figures to symbolize it as primary, secondary, tertiary. It's like a short form that we use it. Yes, we use this in the biology. Okay. Guys, हो गया बच्चा लोग? Ma'am, हाँ. I wanted to ask that these roots of the mangrove plants जो बाहर आते हैं, they are basically the tertiary roots and secondary roots or the Can't main say, roots? Rida, नहीं, Rida can't say this. Main root तो अंदर ही रहता है. Main root, हाँ, मैं आपको बताती हूँ. Guys, ये हो गया है क्या? Guys, मुझे मैंग्रोव प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, रिदा मैं आपको बताती हूँ. Guys, हाँ मैं सोच रहा हूँ. हाँ हाँ. Yes, miss. Suppose if this is a soil, okay? Suppose if this is a soil,
मतलब जो सलाइन सॉइल या मार्शी सॉइल है, तो प्लांट तो ऊपर ग्रो होगा, ठीक है बेटा, प्लांट तो ऊपर ग्रो होगा, राइट, शूट सिस्टम विल बी ऑन टॉप. नाउ दिस शूट इज प्रोड्यूसिंग, मतलब ये जो शूट है ना, इसके रूट्स, इट प्रोड्यूस लैटरल रूट्स. सी, इसके बहुत सारे ऐसे लैटरल रूट्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं अंदर सॉइल के अंदर. एंड देन दीज लैटरल रूट्स will start producing conical spikes at a distance for the respiration. समझ में आया? वैसा होता है, ठीक है गाइस, समझ में आया मैंग्रोव कैसे ग्रो होते हैं? ये अपने जो लैटरल रूट्स है ना, हेलो, Yes, miss. हाँ, Yes, ma'am. जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट इज वेरी स्मॉल. प्राइमरी रूट विल ब्रांच आउट and will produce lateral roots. And ये lateral roots दूर दूर तक spread होंगे. And lateral roots will then produce tertiary root जो ऐसे बाहर निकलते हैं. So yes, you can say that this pneumatophores are tertiary roots. Yes, pneumatophores are tertiary roots. Nirda? Yes, ma'am. Understood. Can I move forward? Modification of adventitious root. Ready? Okay. First is for food storage. मेरे चेहरे पे स्माइल आई बिकॉज मुझे ये वाले पार्ट बहुत ज्यादा पसंद है. सिंपल ट्यूबरस रूट्स. सिंपल ट्यूबरस रूट्स का मतलब है सिंगल ट्यूबरस रूट. ओके, सो बेसिकली these are simple tuberous roots, swollen, no definite shape, कोई प्रॉपर शेप नहीं जो मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूं. सिंगली अराइजिंग, मैंने क्या कहा था, सिंपल ट्यूबरस रूट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सिंगल ट्यूबरस रूट्स. सिंगली अराइजिंग फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम. ओके, बराबर स्टेम का जो लास्ट नीचे का नोड होता है ना, सॉइल के नीचे के, सॉइल के वहां पे जो लास्ट नोड होता है, वो नोड से ये रूट्स अराइज होते हैं एंड दे एंटर इनसाइड द सॉइल. गाइस, नोड से अराइज हो रहे हैं बिकॉज आई हैव कम टू द टॉपिक ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. These are not true roots, these are adventitious roots. That means they are these roots will arise from any part of the plant body. Clear with this? The roots are arising from the nodes of the stem, the last node of the stem, and will enter inside the soil. And then they will start depositing, they will start storing the food. Best example I can give you is, guys, sweet potato, Ipomia batatas. जहां पे साइंटिफिक नाम दिया है वहां पे साइंटिफिक नाम याद रखना है. क्लियर? सिंगली प्रोड्यूस होते हैं. फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट्स. फैसिक्यूलेटेड का मतलब होता है क्लस्टर. क्लस्टर यानी कि these are thick and fleshy roots. Many tuberous roots, आड़े टेढ़े, no definite shape. Many tuberous roots are arising at the base of the stem. Many tuberous roots. Many roots are arising from at the base of the stem. Best example, dahlia and asparagus. Dahlia and asparagus. And dahlia and sweet potato. ये दोनों हम हिंदूज लोग अपने फास्टिंग के टाइम पे खाते हैं. दलिया डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेस्ट. उसको हम कप्पा भी कहते हैं, मलयालम में हम लोग कप्पा कहते हैं उसको. व्हाइटिश कलर का होता है, बॉईल करते हैं. एंड स्वीट पोटैटो को भी बॉईल करते हैं, वो थोड़ा सा स्वीट जैसा होता है, अच्छा टेस्ट रहता है. और दोनों को ऐसे ही खा लेते हैं हम लोग फास्टिंग में. डन? लिख के हो गया? नोट डाउन करके हो गया? एग्जाम्पल्स मुझे पिक्चर दिखाना है, डायग्राम. Look at this cluster. Oh my God. Dahlia. Look at this. Look at this. Dahlia. See, the roots are so irregular in shape and they're so thick clustered. Like clusters में, bunch में, सारे roots food store कर रहे हैं. Adventitious roots bunch में grow होता है ना, तो bunch या cluster of the roots में सारे roots thick हो रहे हैं, सारे roots food store कर रहे हैं. And that's why you see the cluster of tuberous roots. जबकि sweet potato single grow होते हैं. Okay, singly they are produced from the base of the stem, from the node of the stem. ठीक है? Sweet potato. Miss, Yes, एक मिनट, Kiran. last slide पे down. Yeah, sure. Everyone clear with the food storage of adventitious roots? Please, everyone, reply to me, yaar.
Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. Yes, miss. इजी हो रहा है, इजी हो रहा है. हाँ मिस. चलो गुड. Can I change the slide, please? Can I change Yes, the miss. slide? Yes, miss. Guys, आपने इमेज देखा? इमेज देखा? इमेज को देख के स्टडी करो. क्लस्टर है, देखो कितना ज्यादा क्लस्टर है. एंड ये देखो सिंगल सिंगल प्रोड्यूस हो रहे हैं. देखा? बाकी के सारे रूट्स वैसे ही है, सिर्फ एक ही रूट फूड स्टोर करता है यहाँ पे स्वीट पोटैटो के केस में. द रेस्ट ऑफ द रूट्स आर एज इट इज. यहाँ पे सारे रूट्स फूड स्टोर करते हैं, इसलिए देखो ये एकदम ऐसे बंच की तरह ग्रो होता है. ठीक है? डलिया एंड स्वीट पोटैटो, सिंपल ट्यूबरस रूट्स एंड fasciculated tuberous roots. ठीक है? चलो डन. मूविंग ऑन टू माय फेवरेट उयू. हाँ, मैं डर गई. मूविंग ऑन टू माय फेवरेट वन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. गाइस पे अटेंशन, मस्त है ये एकदम. फर्स्ट इज प्रॉप रूट्स. अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉप का इन जनरल इंग्लिश में मतलब क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉप का मतलब क्या होता है? सपोर्ट. यस, सपोर्ट. यहां पे भी हमने प्रॉप वर्ड इसलिए यूज किया है, इट्स बिकॉज वैसे तो प्लांट काफी अच्छा रूट सिस्टम सॉइल के नीचे बनाता है, बट इट ऑल्सो प्रोड्यूस सम एक्स्ट्रा रूट्स टू सपोर्ट इट्स ब्रांचेस. मुझे देखो, देयर इज अ ट्री, करेक्ट? देयर इज अ जाइंट ट्री विद अ जाइंट ट्री ट्रंक एंड इट इज प्रोड्यूसिंग ब्रांचेस. अब क्या हो जाता है, बहुत सारे ब्रांचेस प्रोड्यूस करने की वजह से द ट्री में बेंड. बेस्ट एग्जांपल मैंगो ट्री. मैंने हमेशा मैंगो ट्री को किसी ना किसी डायरेक्शन में ऐसे बेंड होते हुए देखा है. मतलब जिस तरफ में ब्रांचेस ज्यादा होते हैं ना, ट्रीज बेचारे वहां पे उस डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं. तो अब ये बेंडिंग ना हो इसलिए ब्रांचेस को सपोर्ट दे दिया है. ब्रांचेस को सपोर्ट दे दिया है. ना ब्रांचेस हैव नोड्स, एवरीवन. ब्रांचेस हैव नोड्स ना, तो नोड्स में से रूट्स निकलते हैं एंड दीज रूट्स विल ग्रो स्ट्रेट डाउन इनसाइड द सॉइल. इट्स लाइक इट एक्ट लाइक अ पिलर. इट एक्ट्स लाइक अ पिलर. तो ये ब्रांचेस को अगर तुम नोड के वहां पे सपोर्ट दे दो तो ये ब्रांचेस ऐसे बेंड भी नहीं होंगे, यानी कि ट्री ऐसे के ऐसे सीधा खड़ा रहेगा फॉर सो मेनी इयर्स, जब तक वो एज नहीं हो जाता तब तक. समझ में आया? So these are the extra roots which are arising from the nodes of the branches. Guys, these are arising from the nodes of the branches. अपने हाथों को ब्रांच समझो एंड अपना हाथ का ये जो एल्बो जॉइंट है ना उसको नोड समझो. तो ये नोड्स के यहाँ से ये रूट्स बाहर निकलते हैं एंड दीज रूट्स गो स्ट्रेट वर्टिकली डाउन. बिल्कुल आड़ा टेढ़ा नहीं, स्ट्रेट वर्टिकली डाउन इट विल गो एंड विल पेनिट्रेट इनसाइड द सॉइल. और सॉइल में फिक्स हो जाएगा, ताकि क्या होगा, ये ब्रांच है ना ऐसे ऐसे झुकेगा नहीं. It will remain as it is. So it is acting like a support. It acts like a pillar. Banyan tree. Yes, Tia. Oh my God. She came to know about this. Yes, Tia, you are right. And banyan tree ka, guys, oh my God. Look at this beauty. Our national tree of our country. Yes, you need to remember this. It's a general knowledge. General knowledge के कुछ 5-7 questions पूछते हैं नीट में, related to the plant species or animal species. GK वाले type के questions पूछते हैं. Banyan tree is the national tree of our country. Look at these beautiful prop roots. Look at this यार, इतने मोटे मोटे prop roots के मतलब देख के ऐसा लगता है कि ये stem है, but ये actually stem नहीं है, ये roots है. Look at these. Look at this one. Look at this. Oh my God. आपको दिख रहा है? मैं ड्रॉ आपको है ना एक्चुअल उसका स्टेम दिखेगा ही नहीं. इतने सारे रूट्स ग्रो हो जाते हैं कि वो सारा रूट्स ना ऐसे सर्कुलर वे में बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं. तो आप स्टेम जो है ना, उसका मेन जो ट्री ट्रंक है ना, वो अंदर छुपा हुआ रहता है, आपको वो तो दिखेगा ही नहीं. आप कंफ्यूज हो जाओगे, वेयर इज द एक्चुअल ट्री ट्रंक. एक्चुअली मतलब इतने सारे रूट्स प्रोड्यूस होते हैं. बनियन ट्री, ऑफ कोर्स, क्लासिक एग्जांपल. एवरीवन गॉट दिस? Yes, miss. ओके, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू बनियन ट्री. थैंक यू टिया फॉर दिस वंडरफुल एग्जांपल. ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इन 2015 हमारे बनियन ट्री को वॉकिंग ट्री का टाइटल दिया गया है.
हमारे इस बनियन ट्री को, हमारे इंडिया का बनियन ट्री को, विच इज द ओल्डेस्ट ट्री ऑफ आवर कंट्री, 450 to 500 years उसको हो चुके हैं. And Havra Botanical Garden, the India's largest botanical garden. You have to remember this क्योंकि diversity में इसका example है. Havra Botanical Garden, which is the India's largest botanical garden. यहाँ पर ये banyan trees को बहुत अच्छी तरीके से preserve किया गया है, यानी कि इनका take care किया जाता है, because these are very oldest tree. In a huge land they are growing. And in 2015, these trees have gotten another title which is called walking tree. You know why walking tree? आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रीज के ब्रांचेस ने बहुत सारे रूट्स प्रोड्यूस कर दिए, राइट ना. जैसे से ब्रांचेस और आगे बढ़ते जाएंगे, ये पर्टिकुलर एरिया में तो जगह नहीं है रूट्स बनाने के लिए. सो व्हाट हैपेंस, दे प्रोड्यूस द रूट्स आउट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ प्लांट, यानी कि वो रूट्स ऐसे बेंड होके बाहर की तरफ ऐसे ग्रो होते हैं. आप समझ रहे हो? यानी कि ये जो प्रॉप रूट्स है ना, ये प्रॉप रूट्स ऐसे बेंड होके ट्री के सर्कमफेरेंस के बाहर ऐसे ग्रो होते हैं. सो व्हेन यू लुक इट फ्रॉम द फार, लाइक 1 किलोमीटर दूर से अगर आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ट्री है ना ऐसे वॉक कर रहा है, अपने रूट्स के सपोर्ट से वो ऐसे वॉक कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉकिंग ट्री. इजंट दैट अमेजिंग? Of course, I'm proud because it's all about our national tree. I'm really very proud of it. Yes. Okay. Ficus bengalensis. Everyone? Yes, you have to remember this. Ficus bengalensis. Bengalensis. Bengalensis मतलब बंगाल में origin हुआ ये tree है हमारा. Okay. Prop roots. Next, stilt roots. These are very cute roots. These roots are arising from the lower nodes, यानी कि soil के नजदीक जो stem के nodes होते हैं ना. बच्चा लो, suppose अगर ये soil है और green color represents stem, ठीक है, और ये stem, underground stem कहाँ बना रही? Okay, ये stem है, ठीक है. तो जो nodes soil के नजदीक होते हैं ना, ये देखो, ये दोनों nodes soil के बहुत नजदीक है, right? They are very close to the soil. These from these nodes the roots are obliquely produced. ये देखो मैं बना रही हूं, see, obliquely the roots are produced and they go obliquely downwards, obliquely bend होके नीचे जाते हैं. Okay, to hold the stem. ए यार मेरा ड्रॉ कर दिया, आई थिंक आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बता रही हूँ. मेज, शुगर केन, बाजरा, जवार. एग्जैक्टली. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्लांट्स जिनके स्टेम सिंगल है, जो ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सिंगल एंड लॉन्ग स्टेम, सिंगल स्टेम एंड लॉन्ग स्टेम. अब अगर सिंगल ऐसे पाइप की तरह या ऐसे बांबू की, ओ बांबू, बेस्ट एग्जांपल बांबू, बेस्ट एग्जांपल, अनदर बेस्ट एग्जांपल. शायद मैंने यहाँ पे मिस कर दिया हो लेकिन आप लिख सकते हो. अभी देखो ये सारे जो मैंने प्लांट्स के नाम लिए, मेज, शुगर केन, बांबू एंड ऑल. एक चीज देखो, एक चीज नोटिस करो, इन सबके जो स्टेम है ना वो एकदम से सिंगल है और स्ट्रेट है, वर्टिकली स्ट्रेट है एकदम, नो ब्रांचेस एट ऑल. अब इतने स्ट्रेट पिलर जैसे या पाइप जैसे स्टेम को होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम द नोड्स. Okay, these are adventitious roots because stem में से प्रोड्यूस हो रहा है ना. And these roots they bend down and they grow obliquely downwards. Okay, tan. Look at this. Ayo, sorry. Look at this classic roots. देखो ये देखो यहाँ से नए नए roots बाहर निकल रहे. See this. And see this stilt roots. इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट्स. स्टिल्ट यानी कि एक ही जगह पे अटैच करके प्लांट को खड़ा रखना. स्टिल्ट. ओके, एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? आइडेंटिफिकेशन को आएगा ना आइडेंटिफिकेशन? इजीली कर पाओगे ना? गुड. चलो, नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स. व्हाट शुड आई से अबाउट दिस? इट्स सो इजी. मनी प्लांट ले लो यार, घर में मनी प्लांट तो होगा ना सबके, है ना? Yes, miss. बस मेरे ही घर में नहीं है. See how unlucky I am. मेरे पास जगह ही नहीं है इस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. I don't have a proper support in my house कि मैं इसको ग्रो कर सकूं. So मनी प्लांट is the best example. मनी प्लांट मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? जिनके घर में मनी प्लांट है जरा आओ आप मुझे एक्सप्लेन करो
क्या आपने देखा उस प्लांट्स के बारे में? मतलब जब वो प्लांट्स ग्रो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज प्लांट्स आर क्लाइंबर्स, एम आई राइट? अब जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, क्लाइंबर्स के जो स्टेम होती है ना वो बड़ी वीक होती है। एक बात समझ लो, क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है ना वो बहुत पतला होता है, बहुत वीक होता है। अब ऐसे वीक स्टेम को ऊपर क्लाइंब करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए रहता है, and that has been given by the roots. So what happens, the stem of the root from the nodes, it produce many roots which will attach itself on the support. यानी कि किसी भी सपोर्ट पे वो रूट्स पेनिट्रेट होके अटैच होगा ताकि प्लांट ऊपर चढ़ सके। समझ में आया? ऊपर क्लाइंब कर सके, है ना गाइस? यही होता है ना आपके घर में मनी प्लांट का। कहां 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 ऐसे बेंड भी हो जाते हैं, ऐसा वॉल उधर खत्म हो गया तो ऐसे ऊपर बेंड हो जाते हैं। कहां कहां वो सपोर्ट होके ग्रो होते हैं। यस, दे जस्ट रिक्वायर, यस हीर, दे जस्ट रिक्वायर दैट सपोर्ट। उन्हें अगर वो एक नॉन लिविंग सपोर्ट मिल गया ना तो वो वहां पे रूट्स को अटैच करके ग्रो होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर यू गेटिंग इट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लांट। आई हैव शोन इन द इमेज पाइपर नाइग्रम। ये नाइग्रम है, ये बीटल नहीं है। बीटल का पान कैसे होता है मालूम है? बीटल का लीफ ऐसे होता है। बीटल पान, पान खाई के पान बनारस वाला, दैट पान, दैट इज पाइपर बीटल। वो पान, उसको पान कहते हैं हिंदी में। ये पाइपर नाइग्रम है, ये पाइपर नाइग्रम है जिसको ड्राई करके क्रश करके सिगरेट में यूज किया जाता है फॉर स्मोकिंग। इट कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ निकोटिन, पाइपर नाइग्रम। ओके, दिस वी कांट ईट, इट्स अ वाइल्ड स्पीशीज। एंड मनी प्लांट तो सब जानते ही है, या मनी प्लांट तो एवरीवन नोस। I didn't have to show you that, it's a very common plant. Guys, clear? चलो एग्जाम्पल्स ले लिए, आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं सबके। एग्जाम्पल्स वो चार्ट में डालना है प्लीज, कम ऑन क्विक। आई एम सो सॉरी, आई एम सपोज टू अंडरलाइन। मैं अंडरलाइन ही क्यों कर रही हूँ? मैंने साइंटिफिक नाम लिखा है ना, हाँ, तो अंडरलाइन करने की, और वो भी इटैलिक फॉन्ट में लिखा है, तो आई विल नॉट अंडरलाइन देम, ओके, एज पर द नॉमेनक्लेचर रूल। वाइल्ड स्पीशीज है तो यूज क्यों करते हैं स्मोकिंग के लिए? बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ निकोटिन। The cigarettes are available in a different range. You get low content cigarettes for the females जहाँ पे 1% होता है निकोटिन एंड टैनिंग। ओके, टैन आपको पता होगा ना, उसमें ये भी रहता है टार, टार, TAR, टार। तो 1% जितना टार होता है। देन जैसे जैसे टार का परसेंटेज बढ़ता है, आई विल एक्सप्लेन दैट बाद में 12th स्टैंडर्ड में। ओके, तो जैसे जैसे टार का कंटेंट बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे वो सिगरेट जो है उसकी रेंज बढ़ती जाती है, मतलब वो हैवी होते जाता है। इट बिकम्स वेरी हाई कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पाइपर बीटल इज मोर देन इनफ फॉर प्रोड्यूसिंग द सिगरेट्स। पाइपर बीटल पान, उसको भी ड्राई करके सिगरेट्स में डालते हैं, एंड प्लस नाइग्रम भी डालते हैं टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ निकोटिन एंड टार। Okay? And that is why it causes cancer. Content बढ़ जाता है, but you can't eat the leaf of nigrum directly. You can't eat, वो digest ही नहीं हो पाएगा, वैसा है। Guys, special functioning, मस्त। You will not see, first of all, before I teach you, ये दोनों plants आपको अर्बन एरिया में तो नहीं देखने मिलेगा, ट्रस्ट मी। अर्बन एरिया मतलब जहां पे अपन रहते हैं अभी फिलहाल, सिटी एरिया में नहीं, ये प्लांट्स आपको यहां नहीं देखने मिलेगा। ओके, इस प्लांट्स को देखने के लिए यू लिटरली हैव टू गो टू द फॉरेस्ट, यू लिटरली हैव टू गो टू द एग्रीकल्चर फील्ड या फॉरेस्ट में। ओके, तो थोड़ा सा अभी आपको इमेजिनेशन शायद ब्रॉड करना पड़े, अगर जिनको प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा शौक है, या फिर जो मैं दिखा रही हूँ उसके ऊपर डिपेंड, मतलब उसको देख के याद रखना। फर्स्ट इज एपीफाइटिक रूट्स। नाम देखो, एपीफाइटिक, एपी यानी कि एपी सरफेस, सरफेस, हाँ सरफेस, एंड फाइटिक यानी कि प्लांट्स, राइट? यानी कि ये जो रूट्स है ये किसी दूसरे प्लांट के सरफेस पे ग्रो होते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, ये देखो मैं क्या लिख रही हूं, नहीं समझा?
Epiphytic roots are also called as aerial roots. अब समझ में आया? Aerial roots, the one which are hanging, the one which are hanging. So epiphytic roots are the roots which grow on the horizontal branches of the big tree in the forest. Yes, बड़े बड़े trees के branches पे ये छोटे छोटे plants grow होते हैं. Okay, बड़े बड़े trees के branches पे support लेके वो छोटे छोटे plants grow होते हैं, and that's why their roots are hanging down. अब ये क्यों किसी के branch पे grow होते हैं? For the sunlight, guys, for the sunlight. अब क्या हो जाता है, फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज ग्रो होने की वजह से सनलाइट प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे पहुंचता नहीं है. ओके, वो वहीं पर ही ऊपर ही रुक जाता है, तो नीचे तक पहुंच, और अगर नीचे तक पहुंचता भी देन द अमाउंट और द इंटेंसिटी इज वेरी लो. सो दीज प्लांट्स दे नेचुरली ग्रो ऑन टॉप ऑफ द अदर ब्रांचेस ताकि उनको सनलाइट मिल सके. अब आप सोच रहे होंगे कैसे वो ऊपर कैसे पहुंचते हैं, कैसे? अरे भैया, seeds के through, the seeds will get deposited over here, so they will start developing from that seed, or there any buds will reach to that plant, grow होते हैं. Yes, buds are carried by the animals, birds है, monkeys है, ये सब birds buds carry करते हैं, या फिर इसके pollen grains carry करते हैं, या फिर ये इनके seeds को carry करते हैं, and that gets deposited on the branch and they will start growing over there. Okay, स्पेशल एरियल रूट्स कहा जाता है, हैंगिंग रूट्स, बिकॉज ये ब्रांचेस पे ग्रो रहे तो हैंग हो रहे. अब जाहिर सी बात है ये एरियल रूट्स है, इनके पास रूट हेयर्स नहीं है, दे डू नॉट हैव रूट हेयर्स. क्या करेंगे रूट हेयर्स का? दे डू नॉट हैव रूट हेयर्स, बट दे हैव अ स्पॉन्जी टिश्यू which is called velamen tissue. Mark it, very important. They have a spongy tissue called velamen tissue which is situated outside the cortex of the root. Yani ki the covering of the root is made up of spongy tissue which is called velamen, not epidermis, velamen. And this velamen is porous in nature ताकि वो moisture को absorb कर सके. And it is hygroscopic in nature. What is the meaning of hygroscopic? Hygroscopic का मतलब होता है water loving. Loving भी नहीं यार, high affinity for water or moisture. Any substance which has a high affinity for water or moisture are called hygroscopic substance. Best example, आपके घर का नमक, salt is hygroscopic. Chemistry में हम लोग बोलते हैं ना hygroscopic. It is hygroscopic because salt ने जैसे ही पानी या moisture देखा वो तुरंत उसको absorb कर लेता है. Right? Am I right? Yes, miss. Yes, Yeah, miss. I am right. Yeah, I am right. मैं अपने आप को डाउट कर रही हूँ, देखो कैसी हो गई मैं. Yeah, of course I am right. यहाँ तक कि शुगर भी हाइग्रोस्कोपिक है यार. शुगर के छोटे छोटे जो क्यूब्स हमारे घर में यूज करते हैं हम लोग डेली, अवर टेबल शुगर, इवन दैट इज ऑल्सो हाइग्रोस्कोपिक. हाँ, मैंने तो अपने घर में बहुत ऐसे एक्सपीरियंस किया हुआ है. शुगर का डब्बा खुला रह गया कि पतियू, मेरी मम्मी तो सीधा झाड़ू लेके मेरे पीछे दौड़ेगी. Sugar and salt डब्बा has to be tightly closed because these are hygroscopic in nature. तुरंत moisture या water को absorb कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और अंदर फिर वो lump बनाना शुरू कर देते हैं, lump बना देते हैं. राइट? सो वैसे ही ये जो velamen tissue है जो roots को outer surface से cover कर रहा है, these tissues are also hygroscopic. कि atmosphere में जरा भी moisture रहेगा ये तुरंत absorb कर लेंगे. Getting it? Yeah. और इसलिए मैं एक बात बताऊं, ये प्लांट्स है ना ज्यादा बड़े ग्रो नहीं होते, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं, लाइक हर्बल प्लांट्स, छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं. ओके, श्रब्स, इनको श्रब्स या हर्ब्स भी कह सकते हैं. हर्ब्स नहीं, ये श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं, ये श्रब्स की कैटेगरी में. हाँ किरण. Since they grow on other trees, so these are parasitic. No, मैं अभी वही बताने वाली. नेक्स्ट पॉइंट, these are also called assimilatory roots क्योंकि ये खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं. Because they are greenish in color, they do not damage the branch of the tree जिसके ऊपर ये grow हो रहे हैं. नहीं, बहुत ही आराम से growth है, like a symbiotic association. I cannot say symbiotic. Symbiotic तो दो अलग species के बीच में होता है, like a mutualism. I can use the word mutualism over here. Mutualism, इसको कहते हैं mutualism. यानी कि एक ट्री के ब्रांच के ऊपर दूसरा छोटा, मतलब दूसरा ही स्पीशीज प्लांट छोटा सा ग्रो हो रहा है, बट एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हैं. दैट्स इट.
यूजफुल भी नहीं है लेकिन हार्म भी नहीं कर रहे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. मैम Okay, miss. या यस. मैम हम लोग न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? न्यूट्रिएंट्स डिराइव फ्रॉम द मॉइस्चर ओनली दे गेट इट. मॉइस्चर में बहुत मतलब एयर में काफी सारे गैसेस वगैरह भी होते हैं ना, तो वो उसी में से ही यूटिलाइज करते हैं. इसलिए ये Okay. प्लांट्स बहुत डिफिकल्ट है, आप ग्रो ही नहीं कर सकते यहाँ पे. हेलो. यस मैम. एंड एक और बात, आर यू लिसनिंग? किसने पूछा ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में? हेलो. मैम दीक्षा. हाँ दीक्षा, गुड क्वेश्चन. है दीक्षा, सबसे पहली बात तो ये फॉरेस्ट में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं. तो क्या हो जाता है फॉरेस्ट में ना, बड़े बड़े ट्रीज के जो ब्रांचेस होते हैं दे आर हाईली कवर्ड विद द मॉस एंड एल्गे. डू यू नो दैट? कभी फॉरेस्ट गए हो, कभी देखे हो? नहीं. ग्रीन कलर का कवरिंग होता है, लाइक द मॉस एंड द एल्गे दे कवर द ब्रांचेस एंड द ट्री ट्रंक्स. ऑब्वियसली उसमें ट्रीज को कोई नुकसान नहीं होता. ऑफ कोर्स एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर तो ग्रो हो रहा है ना, दैट्स इट, उसमें कोई नुकसान नहीं है. ओके, सो व्हाट हैपेंस जब ऐसे ट्रीज के ब्रांचेस पे जब ये एपिफाइटिक प्लांट्स ग्रो होते हैं, दे गेट द न्यूट्रिएंट्स, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दोस मॉस और फ्रॉम दोस एल्गे आल्सो, जो पास होता है उनको. ठीक है, दैट्स व्हाई दे प्रेफर टू ग्रो इन फॉरेस्ट. यस. ऑर्किड्स, डेंड्रोबियम, ब्यूटीफुल फ्लावर, ट्रस्ट मी, ब्यूटीफुल फ्लावर. अब आप सोच रहे होंगे मिस आप गलत बोल रहे हो, ऑर्किड्स तो हमें यहाँ पे फ्लावर बुके में मिलता है. आप झूठ बोल रहे हो. अरे बाबा, वो जो ऑर्किड्स आपको फ्लावर बुके में मिलता है, दीज आर आर्टिफिशियल ऑर्किड्स, दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्किड्स जो पर्पसली ग्रो किया गया है फॉर द कमर्शियल पर्पस, लाइक फॉर द ऑर्नामेंटल यूज, राइट, फॉर गिफ्टिंग द पीपल, फॉर द ऑर्नामेंटल यूज. इसलिए उसको हाइब्रिडाइज किया हुआ है. But the actual origin orchids, you are not going to see it over here. Definitely you need to go and hunt the forest. Okay. चलो, sucking roots जो है वो एपिफाइटिक का टोटली ऑपोजिट. एपिफाइटिक प्लांट्स तो म्यूचुअलिज्म में आते हैं, यानी कि ये म्यूचुअली ग्रो होते हैं दूसरे प्लांट पे और बिल्कुल भी हार्म नहीं करते. लेकिन ये हार्म करने वालों में से है. सकिंग रूट्स भयंकर हार्म करने वालों में से है, बहुत ज्यादा हार्म करते हैं. These are also called as parasitic roots. नाम जरूर लिखना, parasitic roots और sucking roots. Sucking नाम देखो, sucking सिंपल है. जाइलम में से वाटर एंड फ्लोएम में से फूड डायरेक्टली सक करते हैं. जाइलम में से वाटर एंड फ्लोएम में से फूड डायरेक्टली सक करते. कैसे? मैं ना ये पिक्चर दिखा के एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. कैन आई? ओके. First of all, Yes. these roots are developed by parasites, total parasites. Total, partial भी नहीं, total यानी कि जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो है वो प्लांट डेड होगा ही होगा. Okay, the host will not survive for a long time. It's a total parasite. वो उस host को मार के ही रहेगा. Okay, why? To absorb the food from the host. Beautiful plant, Dodder or Cuscuta. इसको अंबरवेल भी बोलते हैं. ओके, इट्स अ टोटल पैरासाइट. एंड हाउ इट ग्रोस, पहले ये एपिफाइटिक देख लो. या गाइस, कैन यू सी दिस? एरियल रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स, हैंगिंग रूट्स. दिस इज डेंड्रोबियम. ये डेंड्रोबियम स्पीशीज है. डेंड्रोबियम. अनदर एग्जांपल इज वैंडा, डेंड्रोबियम, ऑर्किड्स. ये तीनों एग्जांपल्स याद रखने कंपलसरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये. चलो, दिस इज द डोडर, अ पैरासाइटिक वाइन. कैन यू सी दैट? कैन यू लुक एट दैट? या नाउ आपको सब लोग यहां पे नोटिस करो. कैन यू सी दिस लिटिल टीथ लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं सर्कल कर रही हूं? Yeah. Yes, miss. These are teeth like structure. Teeth मतलब टीथ जैसे शार्प ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनके रूट्स प्रोड्यूस करते हैं. मतलब ये इनके एक्चुअली रूट्स हैं गाइस. ये जो टीथ्स है ना, these are roots. ट्रस्ट मी. और ये जो रूट्स है दे पियर्स इनसाइड द होस्ट ब्रांच, यानी कि होस्ट के ब्रांच में से पर्च होते हैं, डीपली अंदर ऐसे घुसते हैं. ओके, डीपली पियर्स करते हैं.
डीपली पेनिट्रेट करते हैं, एंड व्हेन दे पेनिट्रेट इनसाइड द होस्ट इट प्रोड्यूस, सपोज दिस इज द रूट और ये इसका टीथ है, ओके. Now when it penetrates inside the host, it produces a balloon shaped hostorial cell. Balloon shaped hostorial cell which has a prominent nucleus and cytoplasm. And this balloon shaped hostorial cell will reach to the xylem and phloem and will start sucking the water. Why it is balloon shaped? क्योंकि वो suck कर रहा है ना, suck करके ऊपर की तरफ transport कर रहा है. Are you understanding? Suck करके ऊपर की तरफ, यानी कि plants को transport कर रहा है. That's why it is balloon shape. This balloon shape is called hostoria. Hostoria, a cell which is penetrating inside the host and forming a balloon shaped structure for sucking the food and water from the phloem and xylem respectively. Everyone? Yes, miss. ये इसका रूट का स्ट्रक्चर है गाइस. A very unique, a very different type of structure. मतलब अभी तक हमने जो भी रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा उससे तो काफी अलग है ये. ओके. अगर वो बार्क ऑफ द ट्री बहुत थिक है तो फिर वो पेनिट्रेट कैसे करेगा? नहीं, कस्क्यूटा है ना, कस्क्यूटा ग्रोनवी, कस्क्यूटा है, वो ऐसे ट्रीज पे नहीं ग्रो होता है. नहीं, वो नॉर्मल प्लांट्स पे ग्रो होता है, जो अपने प्लांट्स होते हैं, या फिर वो ट्रीज पे भी ग्रो होता है, ऐसा कुछ नहीं. लेकिन वो ट्रीज के मेन ट्रंक पे नहीं जाते हैं, उसके ब्रांचेस पे जाते हैं जो पतले पतले होते हैं, जहाँ पे वो पेनिट्रेट कर सकता है. ऑब्वियसली शाना है ये प्लांट. द प्लांट नोज एवरीथिंग, कहाँ पे ग्रो होना और कहाँ पे नहीं. एंड ट्रस्ट मी किरण, कस्क्यूटा आर द एनिमी ऑफ फार्मर्स. Farmers, they will keep their agricultural field away from this plant. एक बार इसका pollen grain आ गया ना फील्ड में, बाप रे बाप. You know it's a flowering plant ना. It has a beautiful flower. मॉर्निंग ग्लोरी इसको कहा जाता है. मॉर्निंग ग्लोरी क्योंकि इसके सुबह 7 बजे इसका फ्लावर ओपन होता है. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. अब क्या करें, है तो पैरासाइटिक प्लांट, लेकिन नेचर हैज गिवन अ गिफ्ट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर टू देम. यस मोहम्मद. मिस, अगर दो डिफरेंट कस्क्यूट है तो क्या एक दूसरे से न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे क्या? दो डिफरेंट कस्क्यूटा एक होस्ट पे ग्रो नहीं होते. सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, दो डिफरेंट नहीं मिस, एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक पैरासाइटिक दूसरे पैरासाइटिक के ऊपर ग्रो नहीं होता है. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है नेचर में. पैरासाइट्स है तो उनको लिविंग होस्ट ढूंढना है कंपलसरी. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है, इट हैज टू फाइंड आउट इट्स लिविंग होस्ट. विदाउट लिविंग होस्ट इट विल नॉट सर्वाइव. तो यानी कि अगर नेचर में पैरासाइट्स है तो नेचर में उसके होस्ट भी है. पैरासाइट्स है तो उसके होस्ट भी है. हाँ हीरल, रूट्स तो बहुत स्मॉल है. देखो ना, छोटू सा बलून शेप जैसा टिश्यू जैसा, छोटा सा बलून शेप जैसा सेल्स अंदर बनाता है. क्योंकि उसको कहाँ ये प्लांट को कहाँ कुछ करना ही है. ये प्लांट को ना फोटोसिंथेसिस करना है, ना ट्रांसपीरेशन करना है, ना एब्जॉर्प्शन करना है, कुछ भी तो नहीं करना है. सारा कुछ होस्ट के पास से लेके बढ़िया सा एंजॉय करना है. खत्म. होस्ट गया तो ये भी गया. रिमेंबर, इट्स अ टोटल पैरासाइट. होस्ट इज डेड, द प्लांट इज आल्सो डेड. Miss, मैंने noted picture not of plants parasite but of insect parasites, especially ticks and shrimp parasites, where if a parasite is really big, another smaller parasite grows on top of that one. Okay. So ऐसे plants में हो सकता है क्या? I need to check this because we have never come across to such kind of growth pattern जहाँ पे one parasitic plant पे दूसरा parasitic plant it gains the entire growth. मतलब वो proper growth वहाँ पे करता है. ऐसा मैंने तो आज तक I have not come across to my